नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल लेकर मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आइए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं, आपसे मुलाकात के मुंतज़िर हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम करेंगे क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब आपका, और सना आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, आपको आज के मौजू के बारे में बता देते हैं। हमारा आज का मौजू है ज़कात ना देने वालों का अंजाम। इंशाअल्लाह इस पर बहुत तफ़सील से गुफ्तगू होगी, लेकिन चूँकि आज जुमा है, सैयदुल अय्याम है, तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के मुक़द्दस कलाम से करना चाहेंगे। अल्लाह का नाम लेते हुए तिलावत कुरान पाक की इस्तदा है क़ारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालहु वअद्ददह الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
سدده صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. قاری صاحب، آپ کے حسن انتخاب کی داد دینی پڑے گی. یہ حسن انتخاب ہے، یہ حسن اتفاق ہے کہ یہ جو سورہ ہے اس کا مضمون ماشاءاللہ ہمارے آج کے موضوع سے بہت مطابقت رکھتا ہے، تو اس لیے بھی آپ کو داد دینی ہوگی. اور ماشاءاللہ آپ کے قرات میں، خوش الحانی میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے. اللہ آپ کو اور ترقی دے، آپ کے درجات اور بلند کرے. تو آئیے ناظرین، اب ہم ثنا کے پاس چلتے ہیں اور ثنا ایک دعا پیش کرنے جا رہی ہیں. آغاز کیجیے ثنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے. رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے. میں ہوں بے چین میرے دل کی صدائیں سن لے. رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے. شان اعلیٰ ہے تیری مالک و مختار ہے تو. مجھ کو معلوم ہے دنیا کا مددگار ہے تو. میں ہوں محتاج مجھے علم کی دولت دے دے. اپنے انمول خزانے سے نعمت دے دے. میں ہوں محتاج مجھے علم کی دولت دے دے. اپنے انمول خزانے سے نعمت دے دے. میں ہوں کمزور مجھے دولت ایمان دے دے. ناتوا بندے سے بھی دین کی خدمت دے دے. جلوہ حق سے میرے دل کو فروزہ کر دے. نور اسلام کا چہرے پہ نمایاں کر دے. رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے. میں ہوں بے چین میرے دل کی صدائیں سن لے. رب کونین میرے دل کی صدائیں سن لے. میں پریشان ہوں سرمایہ راحت دے دے. میں پریشان ہوں سرمایہ راحت دے دے. اپنے محبوب کی سچی محبت دے دے. اپنے محبوب کی سچی محبت دے دے. جس کے صدقے میں دو عالم کو بنایا تو نے. جس کے صدقے میں دو عالم کو بنایا تو نے. میرے محبوب جسے کہہ کے بلایا تو نے. میرے محبوب
جسے کہہ کے بلایا تو نے، واسطہ اس کا گنہگار کی بخشش دے دے، اپنے اس بندے نادل سے نوازش کر دے، نور اسلام کا چہرے پہ منور کر دے، رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے، میں ہوں بے چین میرے دل کی صدائیں سن لے، رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت خوب سنا، بہت خوبصورت، بہت پر اثر دعا ہے، اور جس پرسوز انداز میں آپ نے اسے پیش کیا اس کے لیے آپ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ بات وہی ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، دل تک پہنچتی ہے۔ اب بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ عرش الہی تک پہنچے اور شرف قبولیت پا جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے۔ تو انشاءاللہ ملاقات کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ تو ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے صاحب نسبت عالم دین اور معروف اسلامی اسکالر جناب مولانا عبداللہ طارق صاحب کا پرتپا خیر مقدم ہے مولانا صاحب۔ اسی طرح خوش آمدید کہنا چاہیں گے ہمارے ملک کے بہت ہی نامور اور معزز عالم جناب مولانا رئیس الدین اظہری صاحب، آپ کا بھی پرتپا خیر مقدم ہے۔ اور ناظرین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے ناظرین آپ سب کا بھی خیر مقدم ہے۔ اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام۔ بہت تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، مولانا صاحبان کی بھرپور رہنمائی ہوگی۔ ابتدا میں چند کلمات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اولاد آدم کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرنے لگے گا، اور بنی آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی لالچ، حرص و ہوس جگہ بنا لیتی ہے تو اللہ کی محبت سے وہ دور ہو جاتا ہے اور دنیا کے لذتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والوں کے انجام کے بارے میں بھی بہت ساری وعیدیں قرآن پاک میں یا احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ملتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی جو مثال ہے وہ یہ دینا چاہیں گے کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کے دن ان پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ گنجا اس وجہ سے ہوگا کہ وہ زہر کی انتہا کی وجہ سے اس کے بال اڑ جائیں گے۔ یہ سانپ اس کے گلے میں توق کے مانند رہے گا اور وہ کہے گا کہ تو کہاں بھاگ کر جاتا ہے، میں تیرا وہ مال ہوں جسے تو دنیا میں گن گن کر خزانے کے روپ میں جمع کیا کرتا تھا۔ اور وہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا، اس کی پھنکار اتنی زہریلی ہوگی کہ اگر وہ زمین تک پہنچ جائے تو یہاں کی تمام ہریالی سیاہی میں تبدیل ہو جائے۔ اور بھی بہت سارے خوفناک انجام ہیں جو ایسے منکرین زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم مولانا عبداللہ طارق صاحب کے پاس چلتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ان کے سزا یا ان کے انجام کے بارے میں جانیں، یہ جان لیتے ہیں مولانا صاحب کہ زکوٰۃ کو روکنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے میں حل و حجت سے یا احتراز کرتے ہیں، ادا نہیں کرتے اس کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، کسی چیز کی محبت اس کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ جس طرح سے ماں باپ کو بچے سے بے حد محبت ہو تو اس کو جدا نہیں ہونے دیتے، حتیٰ کہ پڑھائی لکھائی میں اور بہت سارے کاموں میں ایسے بچے رہ جاتے ہیں۔ بالکل اصل وجہ یہ ہے، ایک بہت عمدہ مقولہ ہے، حب الدنیا راس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی یہ محبت اتنی بڑھتی ہے کہ اس پیسے کو اپنے ہی ذات کے لیے خرچ نہیں کرتا، آدمی اپنی اولاد کے لیے نہیں خرچ کرتا، جوڑ کر رکھتا رہتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے آیتیں سنی، وہ الذی جمع مالا وعددہ، ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے اس کے لیے، اس شخص کے لیے
جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اور گن گن کے رکھتا رہتا ہے. یہ گننے کا ذکر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ مال جمع کرنے کے بعد آدمی کو جو بہت زیادہ ہوسناک ہوتا ہے پیسے کا، اسے اس بات سے خوشی ملتی ہے کہ کتنے ہو گئے ذرا گن لیں، اور وہ بیٹھ کے گننا شروع کرتا ہے. اب 1 لاکھ ہو گئے، اب 2 لاکھ ہو گئے، اور معلوم ہے 2 لاکھ اس میں رکھے ہوئے. لذت کیوں ملتی ہے مولانا صاحب؟ اس میں لذت اس لیے ملتی ہے کہ معلوم تو ہے کہ گھر پہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن مشاہدہ بھی چاہیے اسے. کچھ نظروں دن کو کے بعد تسکین وہ- ملتی ہے. ہاں، اسے تسلی ہوتی ہے، اسے اچھا لگتا ہے کہ اچھا 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ. حالانکہ خدا پاک کے پکڑ سے کسی وقت بھی باہر نہیں ہے. یہ سورہ توبہ میں 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے مومنین سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کا مال بھی خرید لیا ہے، اس کے بدلے میں ان کو جنت دی ہے. ایک سودا مکمل ہو گیا. اس نے ایک سودا کیا، ہم تمہیں جنت دیتے ہیں. ہم نے جب کلمہ پڑھا تو اس کا اقرار کر لیا کہ یہ سودا ہمیں منظور ہے، یعنی ہماری دولت، ہماری جان، ہمارے ہر چیز آپ کی ملکیت ہے، آپ جیسے کہیں گے ویسے ہم کریں گے. بالکل. لیکن جب ہم وہ نہیں کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں اور سخت گناہ کو دعوت دیتے ہیں. بالکل. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان زندگی بھر پیسے جوڑتا رہتا ہے، حالانکہ اس کا اپنا وہی ہوتا ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا یا آخرت کے لیے توشے کے طور پر بھیج دیا. باقی تو وہ اپنے لواحقین کے لیے چھوڑ جاتا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ اس کو قبر تک پہنچانے والے بھی کون ہیں؟ اس کے اپنے رشتہ دار ہیں، اس کا مال و اسباب ہے، چاہے وہ سواری ہو، چاہے وہ گاڑیاں ہوں، یا پھر اس کا وہ عمل جو آخرت میں یا قبر میں اس کے لیے روشنی کا سامان ہے. لیکن انسان اس حقیقت کو فراموش کر کے دنیا کی لذتوں میں گم رہتا ہے. صحابہ کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھتے تھے، اور جو اپنے لواحقین کے لیے، وارثین کے لیے چھوڑ جاتے تھے وہ بہت ہی محدود ہوتا تھا. حضرت خالد بن ولید نے کیا چھوڑا؟ جنگی سامان، کچھ تلواریں اور ایک گھوڑا. اسی طرح بہت سے ایسے صحابہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی دیا تھا. تو دونوں طرح کی نظیریں ہمارے پاس ہیں. تو اغنیا صحابہ نے کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور ایسے صحابہ کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. صدق اللہ المولانا العظیم. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے بہت ہی صاف اور شفاف طریقے سے بیان فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال و دولت کو، سونا ہو یا چاندی ہو، اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دیجیے عذاب کی. یہ ایک طرح کا طنز ہے، ایک طرح کا ان کے اوپر جو ہے مذاق ان کا اڑایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، اور جبکہ وہ مال اللہ نے ہی آپ کو عطا فرمایا ہے. اور جب ہم اپنی تاریخ اسلامی اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جو ہمارے صحابہ کرام تھے یا جو لوگ بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا سکے یا ان کے بعد ان کے لواحقین کا زمانہ پایا، ان کے اندر مال کی محبت زیادہ نہیں پائی جاتی. جن کے پاس کم تھے مال، ان کی اگر مثال دیکھیں تو قرآن مقدس میں سورہ موجود ہے جس میں آیت مبارکہ موجود ہے کہ ان الابرار یشربون من کأس مزاجها کافورا. یہ پورے آیت پڑھتے چلے جائیے. اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا خاندان، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ پورے گھر میں لوگ موجود ہیں اور گھر میں فاقہ پڑا ہوا ہے. کھانے کے لیے 2 دن سے کوئی بھی چیز نہیں ہے. اس کے بعد جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اے میرے شوہر گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور حسنین کریمین جو کہ بیمار ہیں، ان بھوکے پیاسے بھی ہیں، آپ کچھ انتظام کیجیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں اور جاتے ہیں، ایک شخص کی مزدوری کرتے ہیں اور تھوڑا سا جو لے کر آتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دیتے ہیں کہ یہ لیجئے اور اس سے کچھ روٹیاں بنا لیجئے اور اس سے جو ہے ہم افطار کر لیں گے. چونکہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہم بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں اور ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی مال و دولت نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ جاؤ روزے رکھو اور نماز پڑھو. تو سارے لوگ گھر پہ آتے ہیں تو سارے لوگوں نے پورا کا پورا روزہ رکھ لیا، پورا کا پورا خاندان، حضرت علی ہوں یا حضرت فاطمہ اور بچے حسن کریمین، انہوں نے بھی بڑوں کو روزہ رکھتے دیکھا تو انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا. اب جب وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں
मजदूरी करके थोड़ा सा जौ लेकर आते हैं और फरमाते हैं इससे रोटियां बना दो ताकि इफ्तार इससे कर लेंगे। तो जैसे ही इफ्तार का वक्त होता है और उसके बाद दरवाजे पे दस्तक होती है, अभी सामने रोटी रखी हुई है, भूखे प्यासे हैं और दस्तक हो रही है, तो पूछते हैं कौन? तो फरमाते हैं कि जो है फ़कीर हैं। जब फ़कीर की आवाज़ आती है तो पूरा का पूरा खाना उठाकर उस फ़कीर को दे दिया और खुद भूखे रहकर पानी पे जो है सब्र कर लिया। उसके बाद फिर दूसरा दिन होता है, फिर यही मामला होता है और फिर दरवाजे पे आवाज़ आती है कि मिस्कीन है, और उसके बाद वो भी रोटी उन्होंने उसको दे दी। पूरा वाक़या मौजूद है। तीसरे दिन फिर एक असीर आता है, उसको भी वो रोटियां दे देते हैं। तो इस तरीके से देते हैं कि माल की दौलत छोड़िए, उनको अपनी भूख प्यास भी जो है बर्दाश्त करके जो मांगने वाला है, साइल है, जो हकदार है, उसको देने में उनको ज़रा भी जो है सोच और विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फ़ौरन उठा के दे दिया। इतना ज़्यादा साफ और शफाफ दिल हुआ करता था उनका। तो उन्हीं के लिए फरमाया गया इन्नल अबरार यशरबूना मिन कासिन मिजाजुहा काफूरा, कि वो ऐसे जाम पियेंगे क़यामत के दिन कि उनकी आमेज़िश जो है सफ़ेद और जो है शफाफ होगी, तो वो कभी प्यासे नहीं होंगे। बिल्कुल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़कात नहीं दी। असहाब सुफ़ा की मिसाल हमारे पास है, फ़ुक़रा सहाबा की नज़ीर हमारे सामने है। इसी तरह हम देखते हैं कि अगनिया सहाबा में हज़रत उस्मान गनी हो, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हो, इन्होंने माशाअल्लाह इतनी विरासत में इतना सामान या इतना मालो दौलत छोड़ा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में मिलता है कि सोने की ईंटें थी जो कुल्हाड़ी से तोड़ कर तकसीम की गई, लेकिन इसकी बाज़पुर्स इस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं होगी कि उन्होंने अपनी दौलत को जहाँ अपने बाल बच्चों पे खर्च किया, वहीं इस्लाम की तरक्की के लिए, गुरबा साहबा के लिए, नादारों के लिए वहाँ भी खर्च किया। तो मौलाना साहब, इस्लाम बुनियादी तौर पर पैसे कमाने को या रखने को मना नहीं करता। बुनियादी चीज़ ये है कि उस पैसे को या उस दौलत, उस सोने चांदी को अगर उसके पास है तो उसकी तत्हीर की जाए, उसका तज़किया किया जाए, यही ज़कात का मकसद है। अब वो लोग जो ज़कात अदा नहीं करते, उनके लिए कुरान पाक में क्या वईद मिलती है, किस तरह की सज़ाएँ हैं, क्या अंजाम है उनका? देखिए, एक तो इस सिलसिले में एक हदीस नबवी नकल करता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि माल आफत और तबाही है इल्ला मन क़ाला हा कज़ा व हा कज़ा व हा कज़ा। माल बर्बादी है सिवाय उस आदमी के जो इस तरह से धकेलता हो, देता हो, इधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है, हर तरफ जो खर्च करता है उसके लिए माल आफत नहीं है, वरना आफत ही आफत है। और कुरान मजीद में उन लोगों के लिए जो माल जमा करके रखते हैं बहुत सख्त वईद आई है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन को याद करो, उस दिन का इस्तेज़ार करो जबकि ये सोना चांदी जो लोग जमा करके रखते हैं और राह खुदा में खर्च नहीं करते, इसको जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। यहाँ की आग में जब तपाते हैं तो लोहा सुर्ख हो जाता है अंगारे की तरह। यहाँ की आग वहाँ के आग के मुकाबले में कोई मुकाबला ही नहीं है। उस आग में जिसको तपाया जाएगा वो कितना गर्म हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है ये सोना चांदी को जमा करके और इसको तपाया जाएगा और उससे उनकी पेशानियाँ, उनके पहलू, उनकी कमर, उनके जिस्म के हर हर हिस्से को दाग दिया जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, यही वो माल है जो तुमने अपने नफ्स के लिए जमा किया था, फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, जो कुछ तुम जमा करके रखते थे अब इसे चखो, उसका जायका देखो। इस आयत की थोड़ी सी तशरीह मौलाना साहब आपसे भी जानेंगे। ये मौलाना साहब ने जिस्म के कुछ अज़ा, कुछ हिस्सों का जिक्र किया। जब इंसान के सामने कोई साइल आता है, दस्ते सवाल दराज करता है और वो बखील है, शही है, तो वो उसके माथे पर नागवारी आती है। अब पेशानी को दागा जाएगा, उसके दोनों पहलुओं को दागा जाएगा और उसकी पुश्त को दागा जाएगा। इन अज़ा को दागने की वजह क्या है? इन अज़ा को जो कुरान मुक़द्दस ने बयान फरमाया कि पेशानी को दागा जाएगा और उसके पहलू को दागा जाएगा और पीठ को दागा जाएगा, उसकी जो है बहुत ही जो साफ मिसाल हमें जो मिल रही है कुरान मुक़द्दस में, उसकी वजह यह है कि जब हम अगर किसी से माल तलब करते हैं सबसे पहले जो उसकी बल जो पड़ता है उसकी पेशानी पे पड़ता है। जैसे अगर आपने कोई सवाल ऐसा कर लिया उससे कि जो उससे मोहब्बत और वो नहीं करना चाह रहा है, नहीं देना चाह रहा अपना माल, तो सबसे पहले उसकी पेशानी पे एक जो है शिकन पड़ जाती है। तो इसलिए कुरान मुक़द्दस ने कहा उसकी पेशानी पे दागा जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा जो उसका अमल होता है, किसी शख्स का उस माल ना देना हो और उसे राह फरार इख्तियार करना हो, तो दाएं देखता है और बाएं देखता है, यानी अपने पहलुओं की तरफ कि अगर मैं इधर से निकलूँ या इधर से निकलूँ, किस तरीके से मैं इससे बच जाऊँ तो ताकि मुझे अपना माल देना ना पड़े। तो इसलिए फरमाया गया कि उसके पहलुओं को जो है दागा जाएगा। उसके बाद जब फिर वो पीठ दिखाकर भागता है वहाँ से और वहाँ से राह फरार इख्तियार कर लेता है, तो उसकी पीठ को दागा जाएगा जो तुमने उस साइल की तरफ दिखाई जिसको तुम्हें अपना माल देना था लेकिन तुमने उसको नहीं दिया। तो ये वजह है
کہ ان تینوں جگہوں کو جو ہے داغا جائے گا. بالکل. ٹھکانہ جو ہے وہ ان کا وہ ویل ہے، یعنی وہ ایک ایسی گھاٹی ہے یا جہنم کا ایک ایسا نچلا حصہ ہے کہ اگر اوپر سے پھینکا جائے گا تو نیچے پہنچنے میں اسے 40 سال لگ جائے گے. اتنا برا ٹھکانہ ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی اور ٹھکانہ ہے یا اور کچھ ذکر جس کا ملتا ہو سزاؤں کا؟ وہ صحیح بات یہ ہے کہ اس دنیا سے لے کر اور جہنم کے آخری سزا تک ہر جگہ اس کو پریشانیاں ہی ہیں. جہاں اس کو مال کی محبت اسے بے چین رکھتی ہے، اس کے بچے اس سے نفرت کرتے ہیں کہ جو اسے ملنا چاہیے، تو مال کی محبت اسے بے چین رکھتی ہے، اس کے بچے اس سے نفرت کرتے ہیں کہ جو اسے ملنا چاہیے تو وہ نہیں دے رہا ہے، اپنے کام میں وہ نہیں لیتا ہے، اس کی بخل اور کنجوسی کی وجہ سے بھوک پیاس میں رہے گا، کپڑے مناسب نہیں استعمال کرے گا، راحتیں نہیں پائے گا. مال کے خرچ کر کے جو راحتیں، دولت کی خرچ کر کے جو سہولتیں ملتی ہیں وہ اپنی کنجوسی کی وجہ سے وہ حاصل نہیں کرتا. یہاں سے وہ پریشانی میں ہے. پھر جب وہ قبر میں پہنچے گا وہاں بھی سانپ بچھوؤں سے اس کا واسطہ پڑے گا. پھر اس کے بعد آگے جہاں جہاں بھی جائے گا وہ یہ کنجوس جو ہے نفرت کی نظر سے دیکھا جائے گا. محلے پڑوس کے لوگ، ضرورت مند لوگ، بیکاری لوگ وہ جانتے ہیں یہ تو کوئی دے گا نہیں، چلتے چلتے آئیں گے، اس دروازے پہ سزا لگائی، اس پہ سزا لگائی، اس دروازے کو چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ 100 دفعہ جا کے دیکھا ہے، 100 دفعہ کبھی کچھ ملتا نہیں. یہاں سے ہر جگہ اس کے لیے نفرت ہے. اور اخیر میں یہ ہے کہ وہ جہنم کی وادی جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے، دن میں سینکڑوں بار ایسی جہنم کی سزا اس کو ملے گی. اس لیے کہ مال میں، یہ بات ہم اس روز بھی بتا چکے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں جو مال ہم نے دیا ہے وہ سارا کا سارا تمہارا نہیں ہے. جب تم اسے اپنا سمجھ رہے ہو تو یہ حق تلفی کر رہے ہو بہت سارے لوگوں کی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ما خالطت الزکوٰۃ مالا الا افسدتہ، زکوٰۃ جس مال میں بھی شامل ہو جائے گی اسے برباد کر کے چھوڑے گی. شامل ہو جانا دو طرح سے ہے، یا تو یہ کہ ہمارے مال میں زکوٰۃ نکلی تھی اور ہم نے اس کو نہیں دیا، ہر 100 کے نوٹ میں 2.5 روپے زکوٰۃ کے تھے وہ ہم نے نہیں دیا، ہمارے مال میں شامل ہو گئی. یا یہ کہ کسی اور نے ہمیں زکوٰۃ دی اور ہم مستحق نہیں تھے اور ہم نے وہ لے لی، یہ مال میں ہمارے میں شامل ہو گئی. جس مال میں بھی زکوٰۃ کا مال شامل ہو جائے گا اسے برباد و تباہ کرے گا. بالکل مولانا صاحب، اور زکوٰۃ دے دینے سے مال محفوظ و مامون ہو جاتا ہے، اس کا شر جاتا رہتا ہے. مولانا رئیس صاحب، آپ سے بھی بہت کچھ جانیں گے، لیکن 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں اور کافی دیر سے وہ انتظار کر رہے ہیں، تو آئیے کالر سے ہم ان کا سوال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتے ہیں. سالار بھائی بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سالار بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے اب کے سال ہمارے طرف چاند نہیں دکھا تھا رمضان کا، پھر رات میں 12 بجے ڈکلیئر کرے کہ بھئی آپ اس تراویح کے لیے چلیے، سویرے سحری کرنا ہے. تو کچھ لوگوں نے جو ہے تو روزے چھوٹ گئے، تو کیا انہیں یہ روزہ رکھنا ضروری ہے آگے؟ اور دوسرا سوال یہ باجی کہ جیسے زکوٰۃ ایک واجب چیز ہے اور وہ لمٹ کے اوپر دی جاتی ہے، پر لینے والے کی بھی کوئی لمٹ ہے، یہ جاننا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے، تھوڑا سا انتظار. سید محسن صاحب آپ فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم شگفتہ بہن اور مولانا صاحب کو بھی ہمارا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. ہم سب سے پہلے عزیز سلام کو ہم بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے احسان مند ہیں ہم، جو آپ جیسے ایک نگینے کو اس جگہ پر بٹھا کے جو دین کے معاملات بول رہے ہیں. بہت خوشی ہو رہی ہے ہم کو، جس ٹائم پہ آپ بزرگان دین کے قصے جو بولتی ہو وہ کوئی ہمارے کو سننے میں بھی نہیں آتا بہن. بہت شکریہ اس کے لیے بھائی، ہم اللہ آپ بہت کو بہت جزائے شکریہ ادا کرتے ہیں عزیز سلام کا، آپ کا. آپ ایسے بولتی ہو کہ جیسے ہمارے نظروں کے سامنے جنگیں ہو رہی ہے. جو ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو میں کبھی سنا نہیں تھا، آپ کے بولنے کے بعد میں تو اس کی پوری ہسٹری نکال کے دیکھا. بہن آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، تمام ناظرین کو سلامت رکھے. ہمارا بہت حوصلہ بڑھاتے ہیں اور ہمیں خوب سے خوب تر کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی بتائیے بھائی، کوئی سوال ہے؟ مسئلے جتنے بھی رہتے ہیں بہن، اس مسئلوں کو تو ڈاکٹر صاحب کو ہم پبلک آدھا بولتی ہے تو پورا بول کے ان کا تسلی دلاتی ہو. وہ بہت بہت شکریہ بہن آپ کو، آپ جیسے نگینے کو عزیز سلام جو رکھے ہے اس کے لیے بہت بہت شکریہ بہن. بہت شکریہ، ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے بھائی. تو ناظرین سوالات کی جانب بھی آئیں گے، لیکن اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آج کا دن تاریخ کے آئینے میں. الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 16वां रोज़ा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आधे रमज़ान गुज़र चुका और आधा बाकी है। हम उतना फ़ायदा रमज़ान का उठा नहीं सके जितना उठाना चाहिए था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक हमें इसका अज्र व सवाब अता फ़रमाए। हमारी कोताहियों को, हमारी भूल को, हमारी कमियों को दरगुजर फरमाए और बाकी के जो अय्याम बचे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मिस्र में जब ममलूक तुर्कों की हुकूमत थी तो नेपोलियन ने आज ही के दिन 16 रमज़ान 1213 हिजरी को चढ़ाई कर दी। ममलूक तुर्क जो हैं वो नेपोलियन की फ़ौज को कम आ गए और मुकाबला हल्के में लिया और हार गए और ये जंग जो है नेपोलियन ने बहुत आसानी से जीत ली। अल्लामा बदरुद्दीन अबू अहमद जो अल्लामा ऐनी भी कहलाते हैं, उनकी वफ़ात 16 रमज़ान में हुई सन 762 हिजरी में। मशहूर तारीख़दां और काजी अल्लामा बदरुद्दीन अजमल जो अल्लामा ऐनी भी कहलाते हैं, 16 रमज़ान सन 762 हिजरी को इनका इंतकाल हुआ। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और तारीख़ के मुस्तनद उस्ताद थे। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत मिलती है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि रोज़ेदार के लिए 2 मुसर्रतें हैं, एक इफ्तार के टाइम और एक अपने मौला की बारगाह में हुजूरी के टाइम। ये 2 मुसर्रतें आपके लिए इस टाइम आसान हैं क्योंकि रमज़ान का महीना है। आप इफ्तार के टाइम रोज़ 30 के 30 रमज़ान में बैठें और अपने लिए कोई एक दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे, अपनी कोई ख्वाहिश, अपना कोई जो भी आपके दिल में कोई ऐसी चीज़ हो कि जो आप चाहते हो अपनी आखिरत के लिए, वो मांगें। दूसरे नमाज़ों का मामला है। कुरान ये कहता है कि इंसान सजदे में अल्लाह के करीब होता है और कोई इबादत ऐसी नहीं है कि जिसमें अल्लाह के इतना करीब इंसान हो। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो मखलूक से जुड़ी हुई हैं। एक सजदा इबादतों में ऐसी चीज़ है कि इंसान जो है वो अल्लाह के करीब होता है। रमज़ान का बेपाया रहमतों का, बरकतों का महीना और इसके सजदे, आप इन सजदों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे गिड़गिड़ाएँ। सजदों की दुआएं बड़ी कबूल होती हैं, उसमें अल्लाह बहुत करीब होता है क्योंकि कुरान ने इस बात की सनद दी है कि आप सजदा करें अल्लाह के करीब हो जाएँ। एक आयत का मफ़हूम है। तो आप अपने सजदों में दुआओं को बढ़ा दें। जितने भी रमज़ान आपके बाकी हैं उसमें इंशाअल्लाह ताला आप तमाम अपनी हाजात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे रखें और आप ये देखें किस तरह वो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो मान लेता है इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन, एक बार फिर अपने कॉलर्स के जाने बढ़ रहे हैं। फलकीन बानो हमारे साथ हैं। फलकीन, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, मेरे 4 सवाल हैं, फ़ोन मत कट कर दीजिएगा। नहीं, 2 सवालात हम ले सकते हैं फलकीन। जो बहुत अहम 2 सवाल हैं वो आप बता दीजिए। जी बाजी। बाजी, मुझे तौसीफ अहमद का माना जानना था। ठीक है। और हम जो कॉलेज को जाते हैं कि हम रोजे के हालत में प्रेयर कराते हैं हिंदू के, जो हम वो कर सकते हैं? ठीक है। शाजिया साहबा, अगर आप फोन लाइन पे मौजूद हैं तो सवाल बताइए। शाजिया साहबा, हमें सुन पा रही हैं? शाजिया साहबा से ऐसा लगता है कि शाहजेब भाई आप फोन लाइन पे मौजूद हैं? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे नाज़रीन। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। सवालात हमारे पास मौजूद हैं। सालार भाई का सवाल लेने से पहले एक छोटा सा सवाल मौलाना साहब आपसे जान लेते हैं। जब हम सजाओं के बारे में जानते हैं, मौलाना साहब से सुना, आपसे भी सुना, तो उस सांप के बारे में जान लेते हैं जो कि एक तौक बनाकर ज़कात ना देने वालों के गले में डाल दिया जाएगा। बहुत खौफनाक और भयानक वो सांप होगा, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, अजाब तो बहुत किस्म के हैं और बहुत ही दर्दनाक अजाब हैं। उनमें जो सांप की जो तखसीस की गई कि सांप जो है वो गले में तौक बना के डाल दिया जाएगा, ये इतना सख्त क्यों है? सबसे पहले तो इस सांप के बारे में जानेंगे कि ये सांप कैसा होगा। आमतौर पे जो दुनिया में हमारे पास जो सांप दिखते हैं हमें, या हम जिनके बारे में सुनते हैं, वो
ऐसे होते हैं कि अगर वो डस लें, अगर बहुत जहरीला सांप है, अगर वो डस ले आपको तो 2.5 घंटे तक जो है डसे जाने वाला शख्स जो तड़पता रहता है। एक तो होता है कि अगर आपको फौरन मौत आ जाती है तो ये समझ लीजिए आपके लिए एक छुटकारा है कि आपको मौत आगे खत्म हो गया, दर्द नहीं रहा। लेकिन 2.5 घंटे तक दर्द में तड़पना ये एक अलग अजाब है। उसके बाद वो सांप जो कि गंजा हो, जैसा कि आपने भी शुरू में बताया कि वो इतना ज्यादा जहरीला होगा कि उसके जहर की वजह से उसके सर के बाल भी जो है जा चुके होंगे और उसके जो माथे पर 2 सफेद दाग भी होंगे। ये 2 सफेद दाग जो होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि जब गंजा सांप हो जाता है और उसकी भी हद से वो जब आगे बढ़ जाता है तो उसके माथे पे 2 दाग पड़ जाते हैं सफेद, जो कि उसको और ज्यादा जहरीला बना देते हैं। अब वो अगर सांप किसी को डसे और वो भी आपके गले में पड़ जाए, सब तो पहले तो आप किसी सांप को देखते ही आपके जो है दहशत तारी हो जाती है और आप जो है उससे किस तरीके से भागने की कोशिश करते हैं। और दुनिया में आपके पास अशखास होते हैं, लोग होते हैं जिनके पास आप छुप सकें, पनाह ले सकें, लेकिन वहां आपके पास पनाह भी नहीं होगी। वो सांप आपके गले में ही रहेगा और उसके बाद वो सिर्फ रहेगा ही नहीं बल्कि आपको डसेगा, पहले आपके हाथों को जो है चबाएगा। एक तो उसका जहर और उसके चबाने का जो दर्द, ये 2 दर्द आपको साथ महसूस करने होंगे। उसके बाद वो आपके जबड़ों को जो है वो डसेगा, डसने के बाद उनको पकड़ के खींचेगा। जब वो आपके जबड़ों को खींचेगा तो डसे जाने का दर्द और साथ में आपके जबड़ों को खींचने का दर्द, ये 2 दर्द आपको साथ में बर्दाश्त करने होंगे, जो कि ऐसी मुद्दत तक जिसकी जो है इंतहा नहीं है। हम दुनिया में वक्त जानते हैं कि कितना लंबा होता है, वहां का वक्त 50 गुना ज्यादा, आप मान लीजिए 50,000 गुना मकान की कैद नहीं, ज़मानो मकान की कैद नहीं। तो ये सोचिए कि वो ऐसी जगह जहाँ पे ना रोशनी हो और ना ही कोई छुपने की जगह हो और आप वहां पे आप चीख भी नहीं सकते और किसी से मदद भी नहीं ले सकते। अल्लाह उस दर्दनाक अजाब से हम सबको बचाए। बिल्कुल मौलाना साहब, बहुत ही दर्दनाक 2 कॉलर्स और हैं, आइए उनसे बात कर लें। पहले परवीन साहिबा, आपका इस्तकबाल है, फरमाइए क्या सवाल है। हेलो जी परवीन साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। सुगुप्ता जी, आपका सवाल लेने का अंदाज और मौलाना तारिक साहब इतनी अपनाइया से जवाब देते हैं कि बस कोई भी गलती करने से पहले आप लोगों का चेहरा आ जाता है सामने। पहले तो हमें कहना चाहेंगे बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब की शान में क्या कहें, लेकिन मेरे लिए जो आप कह रही हैं वो आप जर्रे को आफ्ताब कर रही हैं। बहुत शुक्रिया बहन। हम सवाल छोटे छोटे से हैं। एक जो है, हम हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस करते हैं जी, तो ये बताइए कि सदका फित्र देने में हम लोग क्या करें। और दूसरा है, एक जरा सा छोटा सा है, हमारी जो है ताबीर जरूर बतवा दीजिए मौलाना तारिक साहब से। जी हम लोग समुद्र में देखते हैं, कभी अपने को डूबते देखते हैं, कभी अपने बच्चे को, कभी आसपास के लोगों को, तो ऐसा क्या है। जैसे हम बहुत चीज को लेके बहुत दिन से फिक्रमंद भी है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार फोन करने के लिए बहुत शुक्रिया। एक बहन और फोन लाइन पे मौजूद है, अपना नाम बताइए। बहन अपना नाम बताइए। हेलो जी जी, अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, भाई बोल रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या सवाल है। बोल रहा हूँ मैं, मथुरा से बोल रहा हूँ जी, औरंगाबाद मथुरा। जी जी, इस्तकबाल है, फरमाइए सवाल क्या है। ये बोल रहा हूँ, हमारे बस्ती में लड़ाई चल रही है, रमजान का महीना है, मुसलमान भाइयों में आप दुआ कर दीजिए, मैं कभी लड़ाई नहीं हुई। जरूर इंशाल्लाह। कई सवाल हमारे पास है मौलाना साहब। पहले सालार भाई का जो सवाल है, ज़कात देने के लिए जो है कोई हद मुकर्रर है, ज़कात लेने के लिए भी कोई हद है। जी, जिसको हम ज़कात दे रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें, अगर हमें ये मालूम है कि 2-4 आदमी उसको पहले से ज़कात की रकम दे चुके हैं और हम दे रहे हैं या हम ही ज़्यादा देना चाहते हैं, तो फ़ुक़हा ने इस बात की वजाहत की है कि किसी आदमी को इतनी मकदार में माल न दिया जाए कि वो खुद बक़दर निसाब हो जाए। जी। इसका नतीजा यह होगा कि बहुत सारे दूसरे मोहताज लोग रह जाएंगे और एक ही आदमी को आप बहुत ज़्यादा भर देंगे। ये ना हो, थोड़ी थोड़ी मदद सबको पहुंच जानी चाहिए। जी, अब सालार भाई का जो पहला सवाल है वो भी शामिल कर लेते हैं। चांद देखने में जो है वो थोड़ा सा शायद कुछ मकामात पर खबर ताखीर से पहुंची, तो जिन लोगों के रोजे छूट गए हैं वो उसकी कज़ा कब रखें। जी बिल्कुल, देखिए रोज़े की जो कज़ा होती है वो तो रमज़ान में मुमकिन नहीं है, क्योंकि रमज़ान में आपको फ़र्ज़ रोज़े ही रखने हैं। अगर रोज़ा छूट गया है तो आप रमज़ान मुकम्मल होने के बाद ईद के दिन नहीं, क्योंकि ईद के दिन रोज़ा रखना मना है, तो ईद के बाद जल्द से जल्द जितना जल्दी आप रख लें वो आपके लिए बेहतर है। जी, तौसीफ का मतलब बता दीजिए मौलाना साहब। तौसीफ, हाँ, वस्फ जो तारीफ, खूबी बयान करना। जी, अब उन्होंने एक सवाल ये भी किया है कि रोज़े की हालत में कॉलेज में या कहीं कुछ मकामात पर जो प्रेयर्स होती हैं तो उस वक्त क्या किया जाए। देखिए, कोई बात, कोई लफ्ज़ अगर गलत है, वो रोज़े में हो या बगैर रोज़े के हो, वो तो गलत है ही, लेकिन कोई भी गलत बात कहने से रोज़ा टूट नहीं जाता।
जी, बहुत शुक्रिया। सदका फ़ितर के बारे में बहन जानना चाह रही हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों जो है बरसरे रोज़गार हैं, तो सदका फ़ितर किस की अदायगी के लिए पहले कौन मुकल्लफ है? या शौहर बीवी की तरफ से दे सकता है, बीवी शौहर की तरफ से दे सकती है? किसे देना चाहिए? देखिए, जहाँ तक सदका फ़ितर का ताल्लुक है, सदका फ़ितर जो भी मुकल्लफ है उसको खुद देना बेहतर है। अगर बीवी जो है शौहर के जानिब से अगर अदा कर दे या शौहर बीवी के जानिब से अदा कर दे तो उसमें कोई हरज नहीं है, अदा हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि वो खुद अपना अदा करें क्योंकि वो खुद मुकल्लफ हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 कॉलर्स और हैं, अपना नाम बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी, मेरे छोटे छोटे 2-3 सवाल है मैडम। जी, क्या सवाल है बताइए। ये पहला सवाल मेरा, इजामा किसे कहते हैं? इजामा किसे कहते हैं? दूसरा सवाल जो है, हयात किसे कहते हैं? तीसरा सवाल, इत्तेहाद किसे कहते हैं? पहला जो वो है सवाल वो समझ में नहीं, आपने कहा हयात किसे कहते हैं और इत्तेहाद किसे कहते हैं? इजामा किसे कहते हैं? इजामा हिजामा बोलना चाहिए। हिजामा। आई। ठीक है, हिजामा, हयात और इत्तेहाद, आपने इन तीनों के बारे में दरियाफ्त किया है। ठीक है, एक कॉलर और हैं, अपना नाम बताइए। अहमद हुसैन साहब, फरमाइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है, अब ये सोना है, सोने के ऊपर ज़कात है, 5 तोले सोना हमारे पास, इसका ज़कात कैसे निकालना या पैसे के तौर पे करना? भाई एक छोटा सा सवाल, 5 तोले सोने के अलावा आपके पास चांदी भी है कुछ? हाँ, एक तो 20 तोले चांदी। 20 तोले चांदी है, ठीक है। इसके अलावा आपसे मजीद कुछ जानने की जरूरत नहीं है, जरूर बताएंगे मौलाना साहब। लेकिन उससे पहले नाज़रीन आइए आपको ले चलते हैं निजामुद्दीन के इलाके में। निजामुद्दीन बस्ती में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये इलाका रूहानी एहसास के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर तबलीग जमात का मरकज़ है, आलमी मरकज़ है यहाँ पर। इसके अलावा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ पर मज़ार है, उनका मकबरा है, यहाँ पर दरगाह है उनकी। और इसके अलावा यहाँ पर अगर बाज़ार का रुख करें तो यहाँ पर माह मुबारक रमज़ान की रौनकें अपने उरूज पर पहुँचती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर इबादत के ताल्लुक़ से तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत टोपियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, अलग अलग किस्म की टोपियाँ हैं। ये अलग किस्म की है, ये अलग किस्म की बहुत खूबसूरत टोपियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा दीगर चीज़ें भी आप तक पहुँचाएँ। देखिए, तस्बीहात का अहतमाम करने के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज़ की तस्बीह यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो इलाक़ा है जहाँ पर इबादत के लिए लोग दूर दराज इलाक़ों से आते हैं और यहाँ पर चाहे तबलीगी मरकज़ हो वहाँ पर आते हैं या फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में आते हैं। किस तरह की टोपियाँ चल रही हैं चचा? सभी तरह की चल रही हैं, जैसे आपकी पसंद हो वो भी मिलेगी, अच्छी से अच्छी। हाँ, सस्ती वाली भी मिलेगी, महंगी वाली भी मिलेगी आपको। अच्छा, किस तरह की रौनकें हैं रमज़ान की? बहुत अच्छी है। देखो आप दरगाह तलक के अंदर जाके देखो, बहुत अच्छी है। रोज़दारों को रोज़ा वोज़ा सब मिलता है खाने पीने के लिए। माशाल्लाह। किस तरह की रौनकें आप देख रहे हैं यहाँ पर निज़ामुद्दीन में? जैसे मदीने में होती है उसी तरीके की रौनक यहाँ पे भी मरकज़ में भी बड़ी प्यारी रहती है। सुभान अल्लाह। यहाँ पर रौनकें हैं रमज़ान की बरक़ात यहाँ पर हैं। एक रूहानी कैफियत का एहसास आप कर सकते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से मंसूब ये इलाक़ा इबादत के लिए जाना जाता है। दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, न सिर्फ मुल्क से बल्कि बैरून मुल्क भी यहाँ लोग आते हैं। और देखिए, ये तमाम तर इलाक़ा जो है इन्हीं तमाम तर चीज़ों से ख़ूबसूरत है और सजा हुआ है। टोपियाँ देखिए, अलग अलग अंदाज़ की टोपियाँ मैं आपको और दिखाता हूँ। ये मुबारक महीने में ख़ास तौर पर लोग लेना पसंद करते हैं और ईद के लिए भी इसको ख़रीदना पसंद करते हैं। देखिए, अलग अलग अंदाज़ की, एक कॉटन की हैं, ये थोड़ा सा मेरे ख़्याल से रेशम है, और ये मखमल है, और ये अलग अलग अंदाज़ की हैं। किस किस अंदाज़ की हैं ये पूछता हूँ। सब कौन कौन से मुल्क की ये टोपियाँ हैं? हेलो जी, पाकिस्तान है, सऊदीया है, हर जगह, कानपुर है, हर इलाके की, बम्बई की है, हर जगह की है। देखिए, ये जो टोपी है ये इंडोनेशियन है, इंडोनेशिया से आई हुई। ये अफ़गानी स्टाइल कहलाता है, अफ़गानिस्तान का स्टाइल है टोपी का। और इसके अलावा देखिए, ये इंडोनेशिया की है, मलेशिया की है, और वो पीछे भी देखिए ये अलग अलग मुल्कों की टोपियाँ हैं मुख्तलिफ़ अंदाज़ की। ये तुर्की टोपी कहलाती है, बहुत खूबसूरत है। देखिए, मैं तुर्की टोपी लगा कर भी देखूँगा, ये बहुत खूबसूरत टोपी कहलाती है।
ईद की नमाज बच्चे अगर पढ़ने जाएं तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो नाज़रीन, इस तरह क्या जो रौनकें हैं वो यहाँ पर देखी जा रही हैं हज़रत निज़ामुद्दीन इलाके में। तो नाज़रीन, ये था रमज़ान की रौनकों का आलम बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के इलाके से। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। मोहम्मद मुस्लिम साहब, पहले आपसे मुखातिब हैं, फरमाइए क्या सवाल है। मुस्लिम भाई, हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। जी हजरत, हम जानना चाह रहे थे कि एक शख्स को माँ का बद्दुआ लगा हुआ है जी, और उसमें वो मुब्तला हो चुका है, वो बर्बाद हो चुका है। अब उसके लिए कुछ आपके माध्यम से जानना चाह रहे थे कि कुछ रास्ता अगर उसके लिए निजात के लिए निकले तो कुछ एक छोटा रास्ता सा बता सवाल दीजिए। मुस्लिम भाई, एक छोटा सा सवाल। उस शख्स की माँ जिंदा है, हयात है? नहीं है। वो तो कब के गुजर चुकी है। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। मदीहा बहन फोन लाइन पे मौजूद हैं? जी मदिया नहीं, जीनत नाम है मेरा। मुझे मदिया नाम से मालूमात लेनी थी। ठीक है, मानी चाहिए थी। ठीक है। इसके अलावा कोई सवाल? हाँ, और अब मेरा शोर कमाता लेकिन उसमें बरकत ही नहीं है, इतना जमा भी नहीं होता है, ऊपर से कर्ज दे। तो ज़कात निकालना जरूरी है, निकाल सकते हैं? मौलाना साहब, सवाल आपने सुना, अब रहनुमाई फरमाइए। देखिए, जज्बा बहुत मुबारक है कि गुंजाइश न होने के बावजूद आप खर्च करना चाहती हैं राय खुदा में। जो कुछ थोड़ा बहुत आप किसी को दे सकें ज़रूर दे दीजिए। ज़कात जो हालात आप बता रही हैं उसमें आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं है। जी, माँ का इंतकाल हो चुका है लेकिन माँ की बद्दुआ का असर नहीं जा रहा है, वो शख्स बर्बाद हो गया है, कैसे निजात पाए इस बद्दुआ के असर से? जी देखिए, माँ का जो मकाम है इस्लाम में और हमारी शरीयत में वो बहुत ही अजीम है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि उनकी वालिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक बार उनसे पूछा कि आप मेरे बेटे हसन, आप मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाते हैं? मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आप मेरे साथ बैठ के मेरे दस्तरखान पे खाना खाएं, लेकिन आप मेरे साथ खाना नहीं खाते हैं। तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था कि ए मेरी प्यारी माँ, मैं इसलिए आपके साथ खाना नहीं खाता हूँ कि कहीं दस्तरखान पे मैं आपके साथ बैठूँ और किसी ख़ास लुक़मे की तरफ आपकी निगाह पहुँचे और आपके इरादे के पहले मेरा इरादा हो जाए उसको खाने का और मैं उस लुक़मे को उठा के अपने हलक में डाल लूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को ये तकलीफ़ गवारा हो। सुभान अल्लाह। तो इतना बड़ा मकाम है कि हज़रत इमाम हसन इतना एहतराम करते थे, और अगर किसी शख्स को उसकी माँ की बद्दुआ लग जाए तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और ये जो है अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, खूब इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, रो रो के गिड़गड़ा के जिस तरीके से भी हो सके अल्लाह की बारगाह में दुआ करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी माँ के ज़रिया जो है इनकी माफ़ी जो है हो जाए और उनकी जो बद्दुआ लगी हुई है उनकी माँ की तरफ से वो हट जाए। मरने वाले को इंतजार रहता है दुनिया से कोई उसके लिए तोहफा भेजे, इसाले सवाब करे, कोई ऐसा अमल जिससे कि वहां से उनकी बद्दुआ का असर दुआओं में तब्दील हो जाए। देखिए, 3 अमल जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताए हैं हमें कि इंसान दुनिया से चला जाता है, इंतकाल कर जाता है, लेकिन उसका 3 अमल जो रहता है वो हमेशा बाकी रहता है। एक तो जो रहता है कि अगर उसने कोई जो है नेक अमल किया हो, कोई सदका जारिया किया हो, अगर सदका जारिया किया, कोई नहर खुदवा दी, कोई मस्जिद बनवा दी, या कोई भी ऐसा काम जो रिफाए आम के लिए हो, लोग उससे फ़ायदा उठाएं, तो उससे उसको जाने वाले को भी सवाब मिलता रहता है। इस पे ये काम ज़रूर कर डालें जी। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। 2 कॉलर्स और हैं। एक भाई हैं हमारे साथ, अपना नाम बताइए। हमें सुन पा रहे हैं भाई? एक हमशीरा भी हैं। बहन, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो अपना सवाल बताइए। हेलो जी भाई, जी, मैं मोहम्मद हुक्मुद्दीन अंसारी बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद हुक्मुद्दीन अंसारी साहब, फरमाइए सवाल क्या है? जी, सवाल ये है कि मोहतरमा, मेरा 2 निकाह हुआ है। जो मेरी दूसरी बीवी है वो गैर मुसलमान थी, वो इस्लाम में दावत ले आई है। हाँ। और वो दीन का काम तकरीबन नमाज भी है, रोजा भी रखती है और हिंदी में कुरान शरीफ भी पढ़ती है। मैं इससे बेहतर और क्या इसे अगर जमात में भेजना चाहूँ या किसी और भी तरीके से जो मुकम्मल जो ईमान उसका कायम हो जाए। ठीक है, एक बहन भी है हमारे साथ, बताइए बहन आपका सवाल क्या है? बहन हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी जी, अपना नाम बताइए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। नूरजहां साहिबा, फरमाइए सवाल क्या है? नूरजहां, मेरा सवाल ये है कि मेरा 20 साल का एक बच्चा है। हाँ।
वो हर वक्त वहम करता है, नमाज नहीं पढ़ता, उसको हर चीज में वहम धोना, हर चीज धोना, वहम करता है, नमाज नहीं पढ़ पाता, वो नमाज रोजा नहीं रख पाता। अल्लाह ताला हिदायत दे। ज़रूर बताएंगे मौलाना साहब के क्या किया जाए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, हाजिर होते हैं इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक भाई ने दुआ की इल्तिमास की है कि ये दुआ कीजिए कि मुसलमानों में आपस में जो फूट है, इख्तलाफ है, वो इत्तेहाद में तब्दील हो जाए। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम के अख्तिताम पर जब आप दुआ करेंगे तो इस दुआ को ज़रूर याद रखिएगा। मौलाना साहब, हिजामा, हयात और इत्तेहाद, इनका मतलब क्या है? हिजामा एक तरीक़े इलाज है जो अरब में रिवाज में था जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्तेमाल करते थे। इस वक्त हिंदुस्तान में भी ये तरीक़ा मुतारफ़ हुआ है। कुछ पहले सींग के ज़रिए कहते थे, वो सींगी लगाना भी कहते थे उसे जी। वो जिसमें जहाँ कहीं गंदा खून होता है उसको निकालने के लिए वो सुइयों से गोद के उसको और उसके ज़रिए पाइप के ज़रिए किसी चीज़ के ज़रिए उस खून को खींचा जाता है। ये तरीक़ा इलाज है। यहाँ हिंदुस्तान में पहले रिवाज नहीं था, अब यहाँ भी कुछ लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक तरीक़ा इलाज है। हयात और इत्तेहाद, हयात के माने ज़िंदगी और इत्तेहाद मेल जोल के साथ रहना, इख्तिलाफ झगड़ा न करना। जी। अहमद हुसैन साहब का जो सवाल है, 5 तोले सोना है लेकिन 20 तोले चांदी भी है, तो ज़कात बनती है, नसाब में आता है ये सब? जी देखिए, इसका मसला ये है कि अगर सोना निसाब को नहीं पहुंच रहा और चांदी भी आपके पास और निसाब को नहीं पहुंच रही, तो फिर दोनों को मिलाकर उसकी जो कीमत का एतबार किया जाएगा कि अगर जो कम एतबार वाली है, यानी कि जैसे चांदी की कीमत को अगर वो पहुंच जाए दोनों मिलाकर निसाब को, तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। जी। समंदर में डूबते हुए देखती हैं कभी खुद को, कभी अपने बच्चे को। ये बहन का सवाल है जिन्होंने सदका फितर के बारे में भी दरियाफ्त किया था। देखिए, सदका फितर तो बहरहाल वाजिब है, उनको अदा करना चाहिए, लेकिन ये समंदर के बारे में जो आपने ख्वाब देखा है और देखती रहती हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में खुदा न खास्ता कोई भूल चूक कोताही गलती हो रही है, कोई शरई हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है। बार बार नमाज तौबा, नमाज पनाह पढ़िए और कुछ सदका खैरात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए क्या है। अगर समझ में आ जाए खुद ही तो उस कोताही कमी को दूर कीजिए, वरना अल्लाह ताला से तौबा करेंगी, नमाज पनाह पढ़ेंगी, सदका देंगी, इससे ही वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जी। मदीहा का क्या मतलब है मौलाना साहब? मदीहा का मतलब होता है तारीफ करने वाली। जी। अब एक सवाल और आपसे हम ले लेते हैं। हुक्मुद्दीन साहब का सवाल है, 2 बीवियां हैं उनकी, जो दूसरी बीवी है उसके बारे में उन्होंने जो कलिमात बयान किए, बहुत अच्छी बात है कि माशाल्लाह इस्लाम की तरफ जो है वो उनका पूरा दिलजमी से वो काम भी कर रही हैं। अब उनका ये ख्याल है कि उन्हें जमात में भेजा जाए, तो क्या इस्लाम में ख़वातीन के लिए इस तरह का कोई हुक्म या कोई इजाज़त मिलती है? देखिए, इस्लाम में जो है औरतों का जो अगर बाहर शहर से बाहर जाना या दूर जाना हो कहीं, तो शोहर के साथ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और जैसा कि आजकल चूँकि हम ऐसी आबादी में रहते हैं कि जहाँ उलमा की तादाद जो बहुत ज़्यादा है, इल्म दीन हासिल करने के भी बहुत ज़्यादा तरीक़े आपको मुहैया हो जाते हैं आसपास, तो बेहतर ये होगा कि उन्हें दूर ना भेजें और आसपास ही रखें, ताकि आपके कारोबार पे भी कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि आप अपने कारोबार को छोड़ के जाएंगे। और उसके अलावा अगर आप साथ जा सकते हैं उनके साथ तो बेहतर होगा। एक छोटी सी सूरत ये भी नजर आती है कि माशाल्लाह आज के ख़वातीन भी जो हैं वो बहुत अवेयर हैं, उनमें इस चीज़ के बारे में बहुत बेदारी पाई जाती है। तो घरों में भी ख़वातीन इस तरह की मजालिस का इंतज़ाम करती हैं, तो बेहतर ये होगा कि वहाँ बहुत बेहतर है, क्योंकि हम भी खुद देखते हैं कि हमारी अहलिया खुद जो है इस तरह के प्रोग्राम में शरीक होती हैं, और जो है इस तरह के प्रोग्राम हमारे इलाके में होते रहते हैं। ख़वातीन इकट्ठा होती हैं, इल्म दीन की बातें होती हैं, सीखती हैं, और बहुत सारे मसालों पर डिस्कशन होता है, तो उससे बहुत बेहतर तरीका है। जी। अब एक बहुत अहम सवाल ही हमारे पास अब तक का आखिरी सवाल है। नूरजहां साहिबा का है कि 20 साल का बच्चा है, लेकिन उसके अंदर कुछ वहम पाया जाता है, वो बार बार हाथ धोता है और नमाज का एहतमाम भी नहीं हो पाता। ये एक किस्म का शैतानी असर होता है, ये लोगों को पेश आता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पाकी का एक अलग शैतान है, युकालु लहल बलहान, उसका नाम बलहान है, यानी हैरत परेशानी में डाले रखता है। वो आदमी मुंह धो रहा है लेकिन उसे महसूस हुआ कभी धुला नहीं, हाथ धो रहा है और उसे महसूस होगा भी धुला नहीं, फिर धोएगा, फिर धोएगा, फिर धोएगा, नहाएगा तो घंटों नहाता रहेगा। ये एक शैतानी असर है, इसको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ के दूर कीजिए। आयतुल कुर्सी कसरत से पढ़ा कीजिए, घर के अंदर सूरह बकरा पढ़ने का मामूल बनाइए, और 3 दफ़ा धोने के बाद जो हदीस शरीफ का हुक्म है उसके बाद जो है अपने दिल से कहिए कि बस मैं पाक हो गया, अब तो शैतान है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और नमाज पढ़ लिया कीजिए। इस तरह से आप उसको भगाएंगे तो वो दूर हो जाएगा। जी। 2 कॉलर्स और हैं हमारे साथ। जी बहन, अपना सवाल बताइए।
बहन अपना नाम बताइए और अपना सवाल भी बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम तरन्नुम करीमी है। हमने 2 खस्सी पाले हुए थे, थोड़ा थोड़ा 2-3 महीना पर दोनों खस्सी का इंतकाल हो गया। अच्छा, इसका क्या सवाल है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने कुर्बानी के मकसद से लिए थे तरन्नुम साहिबा? ये कुर्बानी के मकसद से रखे हुए थे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। एक बहन और है, अपना नाम भी बताइए और सवाल भी बताइए। हम लाडली बोल रहे हैं कलकत्ता से। जी लाडली साहब। मेरा जगह है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिसको नहीं पहुंचा सकते, तो बाद में पहुंचाने से कोई ऐसा ही नहीं है। आपकी आवाज पूरी तरह हम तक नहीं पहुंची, सवाल शुरू से बताइए, हम आराम से सुनने को बैठे हुए हैं, बताइए। बोल रहे हैं कि जगह का पैसा है कि कुछ लोग को हम नहीं पहुंचा सकते हैं। क्यों नहीं पहुंचा तो सकती? बाद में देने से हो जाएगा। अच्छा, अब फौरी तौर पर नहीं पहुंचा सकती, लेकिन बाद में अगर उन तक पहुंचाया जाए तो क्या ज़कात अदा हो जाएगी? देखिए, जहाँ तक हो देर न की जाए, ज़्यादा ताख़ीर करना मुनासिब नहीं है, बाद में पहुंचा दीजिएगा। जी, तरन्नुम साहिबा ने कुर्बानी के मकसद से घर में 2 बकरे पाले थे, लेकिन वो फौत हो गए, तो अब वो जानना चाह रही हैं कि क्या किया जाए, या इसमें अल्लाह की क्या मर्जी है, किस तरह सब्र करें और इसको अल्लाह का हुक्म समझकर तसल्ली कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो भी हुक्म होता है उस पर हमेशा राज़ी बरज़ा होना चाहिए। और आमतौर पे जब हम कभी देखते हैं कि घर में कुछ जानवरों पे मुसीबतें आ रही हैं, बलाएं आ रही हैं, तो एक रिवायत में आता है कि जब इंसान पे कोई मुसीबत आने वाली होती है, वबा आने वाली है, तो घर में जो जानवर होते हैं सबसे पहले वो मुतासिर होते हैं। तो इसलिए जो है, अगर जानवर पे मुसीबत आई, इसका मतलब कि वो आप पे भी आ सकती है। इसलिए तौबा इस्तिग़फ़ार करें, और बेहतर तरीका ये कि सदक़े को से जो है सदका करें, क्योंकि जो सदका जो है बला और मुसीबतों को दूर कर देता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहबान का। वक्त दुआ है नाज़रीन, आइए आप भी अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाइए, हम भी दस्ते सवाल दराज करते हैं, और मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास है कि आप दुआ फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम वअफ़ु व तकर्रम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इलाहुल आलमीन, हम सब के गुनाहों को अपने करम से माफ़ फरमा दे। ए परवरदिगार, ये मुबारक साथ हैं, मुबारक अय्याम चल रहे हैं। ए इलाहुल आलमीन, आधे से ज़्यादा रमज़ान गुज़र चुका है। परवरदिगार, जितने दिन बाकी रह गए हैं उनके हमें भरपूर कदर करने की तौफीक अता फरमा। इसके दिनों की, इसके रातों की कदर करने की तौफीक दे। नमाज़ों का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमा। क़यामुल लैल और रात की इबादत करने की तौफीक अता फरमा। कुरान मजीद की तिलावत से सरफराज फरमा। इलाहुल आलमीन, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा दे। जो कर्ज़ों के बार से दबे हुए हैं उनके कर्ज़े अदा करा दे। जो कारोबार से परेशान हैं उनको हलाल तय्यब कारोबार नसीब फरमा। और जिनको तूने हलाल कारोबार दिया है और वो अपनी नादानी से उसको हराम कर रहे हैं, हराम कर रहे हैं, परवरदिगार उनको हलाल रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जितने बच्चे में कामयाबी अता फरमा। जो बच्चे और बच्चियां रिश्तों के लिए बैठे हुए हैं उनको मुनासिब रिश्ते अता फरमा। ए परवरदिगार, जिनके रिश्ते तय हो गए हैं, इलाहुल आलमीन, इस जिम्मेदारी से उनके वालिदैन को और उनके ज़िम्मेदारान को आसानी से सबकदोश होने की तौफीक अता फरमा। जो औलाद के मुतमन्नी हैं उनको सालेह औलाद नसीब फरमा। और ए परवरदिगार, जिनको तूने औलाद अता फरमाई है और वो औलाद उनके दिलों की राहत का ज़रिया नहीं है, उनके ज़ख्मों का मरहम नहीं है, ए परवरदिगार उनके औलाद को उनके लिए राहत और सुकून का ज़रिया बना दे। परवरदिगार, हर तरह की राहत और सुकून नसीब फरमा। आलम इस्लाम के ऊपर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। ए इलाहुल आलमीन, पूरी इंसानियत को अपने करम से नवाज दे। हमारे मुल्क में भी अमन و अमान कायम फरमा। इलाहुल आलमीन, महंगाई से निजात अता फरमा। नज़्म इंतज़ाम का हाल बेहतर कर दे। ए परवरदिगार, जितने लोग बहन और भाई हमसे दुआओं के लिए कहते हैं, परवरदिगार उनके नेक मकासद में कामयाबी अता फरमा। जितने लोग तेरे सामने हाथ फैलाए बैठे हुए हैं, ए परवरदिगार, बहनें भी हैं और भाई भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, परवरदिगार सब के दिलों के अंदर तमन्नाएँ हैं, आरजुएँ हैं। परवरदिगार, सब की हाजतों को तो खूब जानने वाला है। हर एक की दिली तमन्ना मुराद को, जायज़ मुराद को अपने करम से पूरा फरमा दे। हर मुश्किल को आसान फरमा दे। ए परवरदिगार, इस प्रोग्राम के ज़रिए जो खैर की बात दुनिया में पहुँचाई जा रही है, ए परवरदिगार,
ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرما اور دنیا کو اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار اس سلسلے کو تعدیر قائم فرما۔ اے الہ العالمین اپنا فضل فرما دے، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے، آپ سب کی زبانوں میں تاثیر پیدا کرے۔ بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیں گے کہ انشاءاللہ بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔